The FPIs invest heavily in India, and there are so many routes through which the FPI, foreign portfolio investors, can definitely invest their money in the Indian markets. So in this particular video, we are going to discuss about the RBI lifts 2.5 lakh crore investment limit for the FPI. There used to be an investment limit which is as of now not at all there. RBI has removed that particular limit, but under the voluntary retention route. So first we'll be understanding what is the meaning of FPI. Then we'll be understanding so many routes that as of now the FPIs are having to make investment in the Indian markets. And then we'll be understanding about कि आखिर में ये न्यूज़ क्या चीज़ है, किस बात की लिमिट हटाई गई है. Okay, so let's start the discussion. Hello everyone, my name is Pratik Taldar. Here at Oleboard I teach finance in the RBI grade B. Okay, so let's start with the discussion. And guys, in case if you are having any doubt, and let's suppose if you want to join some finance related channel for your preparation, definitely you can join my channel. If you type CA Pratik Finance on Telegram, you will get the link of my group. Okay, it's a kind of study group. So what FPI means basically, so FPI stands for foreign portfolio investors. These are the foreign investors, these are the investors which are outside India and they are building their portfolio in India basically. So they are non-resident investors जिनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी, राइट. सो ये एफडीआई अलग होता है, एफपीआई अलग होता है. एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एंड एफपीआई डू नॉट सीक एनी काइंड ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल. तो यहाँ एफपीआई को कोई मैनेजरियल कंट्रोल नहीं चाहिए होता जैसा कि एफडीआई में चाहिए होता है. ये तो बस एक अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ये तो बस कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टू गेन रिटर्न्स, राइट. अब एफपीआई क्यों मैटर करते हैं इंडिया में, क्योंकि देखो एफपीआई से काफ़ी सारा कैपिटल आता है गवर्नमेंट को, राइट, कॉर्पोरेट बोरोइंग्स के अंदर. सो एफपीआई से यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इनफ्लोज आते हैं. कुछ इनफ्लोज उसमें से कॉर्पोरेट को आते हैं, कंपनीज को आते हैं और कुछ गवर्नमेंट को भी आते हैं, राइट. Specifically, I am talking about the debt market. And what do you mean by debt? It is a kind of loan. So bonds, debentures, corporate bonds, government securities, ये सारे debt instruments के अंदर आते हैं. And debt instrument means an instrument which is a fixed interest bearing security. Fixed interest bearing security. तो अगर आपने किसी से debt ले लिया तो आपको उसको fixed interest देना पड़ेगा, right? आपने किसी को debt दे दिया तो आपको fixed interest मिलने लग जाएगा. So debt is a kind of loan. So usually there are three routes for the FPI investment in the Indian debt market. If they want to invest in Indian debt market, there are three specific routes. The first one is a general route, right? ये एक standardized route है. हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे macro prudential norms हैं, limits हैं, concentration limits हैं, residual maturity norms हैं, बहुत सारे rules and regulation हैं. तो अगर कोई FPI इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो जनरल रूट के थ्रू कर सकता है, पर उसको सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे. सही है. दूसरा, फुल्ली एक्सेसिबल रूट. नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज फुल्ली एक्सेसिबल. सो इट इज अ सेपरेट चैनल विच इज क्रिएटेड टू इन्वेस्ट फ्रीली इन द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सो इन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द एफपीआई कैन इन्वेस्ट विदाउट इवन टेकिंग केयर अबाउट द सो मेनी लिमिट्स विच आर देयर इन द जनरल रूट्स. सो जनरल रूट्स के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है फुल्ली एक्सेसिबल रूट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है. तो अगर आपको जनरल रूट में आना है, आप डेट मार्केट की काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे, पर आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे. देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, राइट. यू कैन कम इन दी फुली एक्सेसिबल रूट एज वेल. यहाँ पे कुछ ही सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर पाओगे, बट खुल के इन्वेस्ट कर पाओगे. वहाँ पे लिमिट्स नहीं रहेंगी आपके ऊपर, राइट. बहुत ज़्यादा लिमिट्स आपके ऊपर यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी, इसलिए द नेम सेज इट ऑल, इट इज़ फुली एक्सेसिबल रूट. एक तीसरा रूट और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो के पर्सपेक्टिव से. वाई? बिकॉज द न्यूज रिलेट्स टू VRR, विच इज वॉलंटरी रिटेंशन रूट. वॉलंटरली यू हैव टू रिटेन योर मनी इन द इंडिया, राइट, इन द कंट्री वेयर यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. वॉलंटरी रिटेंशन रूट. सो अगर आप एक एफपीआई हो, राइट, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको यहाँ पे स्टेबल मनी लाना पड़ेगा. स्टेबल मनी मतलब ऐसा नहीं कि आप आए, इन्वेस्ट किया, वापस निकाल के फिर चले गए गेन लेके. नहीं, ये नहीं चलेगा. आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा और आपको इंडिया को स्टेबल फॉरेन कैपिटल देना पड़ेगा. आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा और स्टेबल फॉरेन कैपिटल देना पड़ेगा. सर लॉन्ग टर्म क्या होता है? किसी के लिए तो 1 महीना भी बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है, किसी के लिए 1 साल होता है, किसी के लिए कुछ और होता है.
we'll be discussing about what the long term means here. Okay, so voluntary retention route क्या होता है? It's a special route which is introduced by Reserve Bank of India in March 2019. Why? Because RBI wants to encourage long term foreign investment कि हमारे पास लंबे समय के लिए, काफ़ी टाइम के लिए foreign investment आए, that too particularly in the Indian debt market, right? So long term का मतलब होता है minimum आपको आना होगा तो 3 साल के लिए आना होगा. So if an FPI is investing in India via the VRR voluntary retention route, सर वो करेगा ही क्यों? 3 साल का तो आपने लॉक इन लगा दिया उसके ऊपर, वो 3 साल तक पैसा नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसको काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस मिलेंगे, राइट, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए वो आएगा VRR के अंदर, वॉलंटरी रिटेंशन रूट के अंदर, और चाहेगा कि मैं 3 साल तक अपना पैसा यहाँ पे लगा के रखूँ, राइट. तो गवर्नमेंट फ्री में तो किसी को कुछ देती नहीं है, तो 3 साल का लॉक इन रख लिया, और ऑब्वियसली अब उनको बुलाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे. सही है ना? सो इन रिटर्न द FPI विल बी गेटिंग रिलैक्स्ड इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन दी पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन. यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको वॉलंटरी रिटेंशन रूट के अंदर मिलते हैं, बट देयर विल बी अ लॉक इन पीरियड ऑफ मिनिमम 3 ईयर, मतलब आपको कम से कम 3 साल के लिए आना पड़ेगा, इसलिए इसके नाम में रिटेंशन है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिटेन यू एज एन इन्वेस्टर, राइट. अच्छा, अर्लियर इफ एन FPI is coming via the VRR route in India and investing in the debt securities, the limit used to be 2.5 lakh crore. The limit used to be 2.5 lakh crore. As of now, RBI has removed this limit, right? RBI has removed this limit, and RBI says that if you are an FPI, there is already a general route ki limit. There is already a mentioned limit, a defined limit for the general route. If you come via general route or you are coming via voluntary retention route, doesn't matter, the same limit will apply. The same limit of the general route will apply. So सर यहाँ पे अब क्या हमको जनरल रूट में मर्ज कर दिया कि नहीं, सिर्फ लिमिट मर्ज करिए. तो जो लिमिट जनरल रूट के लिए दे रखी है वही वॉलंटरी रिटेंशन रूट के लिए भी हो गई. अरे सिर्फ लिमिट चेंज करिए इन्वेस्टमेंट की, रिटेंशन तो अभी भी करना पड़ेगा. VRR में आओगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, पर आपको 3 साल के लिए कहीं नहीं जाना है. 3 साल के लिए आप हमारे इंडिया के हो गए, राइट. आप FPI हो, आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, VRR के थ्रू कर दिया, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट अब आप हमारे हो चुके हो 3 साल के लिए. जनरल लिमिट में आए हो, जनरल रूट के थ्रू आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, जो लिमिट्स हैं वो फॉलो कर लेना. VRR के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं, दोनों की लिमिट जनरल लिमिट वाली रहेगी, राइट. दोनों की लिमिट सर जनरल लिमिट है क्या? अभी बताता हूँ क्या चीज़ है जनरल लिमिट. सबसे पहले समझ लो कि ये 2.5 लाख करोड़ वाली लिमिट हटा दी गई है. अब VRR और जनरल लिमिट दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है ना. तो इतनी लिमिट तक आप FPI हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो. सर कितनी लिमिट तक? अभी बताता हूँ आपको. पहले ये समझ लो कि ये जो सर्कुलर है, ये जो गाइडलाइन है, ये 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी. 1 अप्रैल 2026 से ये इन्वेस्ट चालू यहाँ पे कर दी जाएगी, राइट. So VRR investments will now be counted under the overall FPI debt investment limit. जो overall limit थी ना, उसी के अंदर आप VRR को भी काउंट कर लेना. सही है. So why RBI is doing these kind of things? Because to deepen the India's debt market, इससे इंडिया का डेट मार्केट बेटर हो जाएगा. Why? Because यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई. अरे क्या हुआ था मैं बताता हूँ. 2.5 लाख करोड़ की लिमिट है, बहुत कम लिमिट है. FPI ने ऑलरेडी 80% ऑफ 2.5 लाख कंज्यूम कर लिया, मतलब लिमिट क्रॉस होने ही वाली है, 20% ही बची, 80% तो कंज्यूम कर चुके हैं, उतना तो इन्वेस्ट खुद ही कर चुके हैं. अब वो और कंज्यूम करेंगे तो लिमिट तो खत्म हो जाएगी ना 2.5 लाख करोड़ की. तो RBI ने यहाँ पे बोल दिया यार जो जनरल लिमिट है उसके अंदर ही आ जाओ, अलग से तुम्हारे ऊपर और कोई लिमिट नहीं लगाते, तुमको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, जो जनरल लिमिट है उसमें ही आ जाओ, राइट. सो अब ये वाली कैप हट चुकी है और आप जनरल लिमिट के अंदर आ चुके हो. बट मैंडेटरी रिटेंशन पीरियड अगर आप VRR के थ्रू आ रहे हो तो 3 साल के लिए तो आपको हमारे होके रहना पड़ेगा. अच्छा, जनरल लिमिट क्या है सर? ये जनरल लिमिट है अगर आप FPI हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो 6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसका 6% आप इन्वेस्ट कर लेना. कॉर्पोरेट बॉन्ड, अच्छा आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक लिमिट है उसका 15% ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. 15% तक आप ले सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 6%, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 15%,
और स्टेट गवर्नमेंट लोन्स, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला का 2%. सो 6%, 15%, 2%, 2% फॉर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, 2% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, 6% फॉर central government, and for the corporate bonds it is 15%. For the corporate bonds it is 15%, and I have told you the reason behind this change is FPI has already exhausted the limit of VRR up to 80% of the limit is already completed, utilized. So that's why RBI is flexible enough to grant such a kind of big limit based on percentages, and now there will be only one limit. तो ये तो और बेटर है कि एक नंबर कम याद रखना पड़ेगा. ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम में याद रख के जाओगे. सेंट्रल गवर्नमेंट की 6%, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की 15%, स्टेट गवर्नमेंट लोन्स की 2%. उसके अलावा ये वाली लिमिट अब हट चुकी है, ये भी आप याद करके जाओगे. 2.5 लाख करोड़ वाली जो लिमिट है, नाउ दिस इज नो मोर. 3 साल का रिटेंशन होता है, ये भी आप याद करके जाओगे. सो बस इतना ही आपको बताना था वीडियो के अंदर, एक छोटा सा वीडियो, फटाफट से आपको एक अपडेट देना था. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा. Okay, so see you soon in some other video guys. Thank you so much for watching this video. See you in the upcoming video.